میرے تایا کی بیٹی سکھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ماں باپ کی اتنی فرما بردار تھی کہ سب رشتہ دار اپنی بچیوں کو اس کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ اگرچہ غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا، مگر وہ لالچی تھی اور نہ کسی شہزادے کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ بس کہتی کہ کاش مجھے میرے والد پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میری زندگی سنور جائے۔ بتاتی چلوں کہ ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں لڑکیوں کو پڑھانا برائی تصور کیا جاتا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ پرانے خیالات کے تھے، آج کے زمانے سے صدیوں پیچھے تھے۔ وہ ایسے رسم و رواج کے پابند تھے جن کا ترقی یافتہ دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سکھی کا والد ٹرک پر جاتا تھا، وہ ٹرک پر فروٹ لاد کر دوسرے شہروں میں لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ غربت کے باوجود میرے تایا کے گاؤں میں بہت عزت تھی کہ وہ غلط طریقوں سے دولت کمانے کو برا جانتا تھا۔ کافی عرصے سے بڑے شہروں میں آنے جانے سے اس کے ذہن میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ لڑکیوں کی تعلیم کو برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن برادری کے اعتراضات سے بچنے کے لیے سکھی کو اسکول نہیں بھیجتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پڑوس کی لڑکی کی منت سماجت کر رہی ہے کہ وہ اسے پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہاں تک کہ اس نے پڑوسن لڑکی کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگائے، جس پر تایا کو غیرت آئی اور اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بچی تم میری لاج رکھنا، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں تمہیں اپنے گاؤں کے اسکول میں مڈل تک تعلیم دلواؤں گا۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول مڈل تک ہی تھا، لہٰذا سکھی نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی عزت کی لاج رکھے گی، ہرگز ایسا موقع نہ دے گی کہ باپ کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یوں تایا نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی کلاس میں ایک امیر باپ کی بیٹی حسن بانو بھی پڑھتی تھی، جس نے سکھی کی اچھی عادات اور نرم مزاجی کے سبب اسے پسند کر لیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ کار میں آتی جبکہ سکھی پیدل اسکول جاتی تھی۔ حسن بانو کا بھائی اکثر گاڑی پر اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ اس کا نام زمان خان تھا۔ وہ حسن پرست نوجوان تھا۔ جب اس نے سکھی کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا، چاہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے کلام کرے، لیکن وہ چھٹی کے وقت جب اپنے گھر کی سمت رواں دواں ہوتی تو ہر شے سے بے نیاز ہو کر چلتی۔ اسے زمانے کی ہوا نہ لگی تھی۔ کئی بار حسن بانو نے کہا کہ آؤ سکھی، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں، ہم ایک ہی راستے سے آتے جاتے ہیں، تم میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مگر سکھی نے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب مجھے پیدل ہی جانا ہے تو پھر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میرے والد کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی گاڑی میں بیٹھوں۔ میری چھوٹی بہن کو بھی تایا نے والد سے کہہ کر اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس طرح دونوں اکٹھے آتی جاتی تھی۔ میرے والد بھی کافی سخت مزاج آدمی تھے۔ یہ دونوں وقت پر اسکول جاتی اور وقت پر گھر آ جاتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر یا ادھر ادھر نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا اور یہ 8ویں کلاس تک پہنچ گئی۔ تایا خوش تھے کہ سکھی بہت اچھے نمبر لائی تھی۔ اسکول کی استانیاں اس کی تعریف کرتی تھی۔ انہیں امید تھی سکھی بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لے گی اور ان کے اسکول کا نام روشن کرے گی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ مڈل کے سالانہ امتحان میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ٹیچر نے گھر آ کر اس کے والدین کو مبارکباد دی۔ تایا بہت خوش تھے، انہیں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب اس کی شاندار کامیابی پر خوش تھے۔ خوش نہیں تھا تو ایک زمان، کیونکہ وہ ابھی تک سکھی سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دل میں آرزو شدید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ سکھی کو اپنی جانب مائل کر لے، تاہم اپنی بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ایک معیوب بات تھی۔ پہلے وہ اسکول آتے جاتے اس کا دیدار کر لیتا تھا، اب سکھی نے اسکول آنا بند کر دیا تھا اور گھر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی مجبور ہو کر اس نے حسن بانو سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دوستی کا رشتہ قائم رکھو، کیونکہ میں سکھی سے شادی کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔ حسن بانو نے سمجھایا کہ یہ بات ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے والد دولت کے پجاری ہیں، وہ ہرگز ایک غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا پسند نہ کریں گے، تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ زمان کو مگر چین نہ تھا، وہ ہر حال میں سکھی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں سیل فون نیا آیا تھا۔ سکھی کے والد کو بھی 2 سیل فون اس کے مالک نے دیے، ایک اپنے پاس رکھو تاکہ جب تم گھر میں ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ جب تم ڈیوٹی پر دوسرے شہروں میں قیام کرو تو وہ تم سے رابطہ کر سکے۔ تایا جی نے ایسا ہی کیا، ایک فون خود رکھا، دوسرا تائی کو دے کر کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ہاں، میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تائی نے جواب دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی، لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔
जब नंबर मिलाना होता इन्हें सखी से कहना पड़ता कि नंबर मिला कर दो, और वो माँ को नंबर मिला दिया करती। ताया और ताई मुतमईन थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करे। पहले ताई फ़ोन हर वक्त अपनी निगरानी में रखती थी, लेकिन फिर उन्होंने इसकी परवाह छोड़ दी कि फ़ोन कहाँ रखा है, क्योंकि सखी किसी को फ़ोन करती थी और ना हम लड़कियों में से किसी के पास सेल फ़ोन थे सिवाय हुस्न बानो के। बात करनी होती तो वो पहले वो सखी की माँ से बात करती, इजाज़त मांगती तो ताई उसकी बात सखी से करवा देती थी। इसी तरह ज़मान ने सखी की वालदा का नंबर मालूम किया और एक दिन अपनी एक रिश्तेदार लड़की के ज़रिए फ़ोन मिलाकर सखी से बात की। जब सखी ने हेलो कहा तो लड़की ने फ़ोन ज़मान को दे दिया। उसने सखी से बात की कि मैं कई साल से तुमसे बात करना चाहता था, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे वालिद जो मांगेंगे हम वो दे देंगे, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम कभी कभी फ़ोन पर मुझसे बात कर लिया करो। ये अल्फाज सुनकर सखी को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब बार बार ताई का फ़ोन बजता, जब वो फ़ोन उठाती तो वो बंद हो जाता। वो समझती कि रॉन्ग नंबर है, कोई तंग कर रहा है, लेकिन सखी को इल्म था ये कोई और नहीं ज़मान है। उसने किसी तरह हुस्न बानो से राब्ता किया और कहा कि अपने भाई को समझाओ ऐसा ना करे। अगर मेरे बाबा जान को इल्म हो गया तो मेरे साथ ही नहीं इसके साथ भी बहुत बुरा होगा। ज़मान मगर कहाँ समझने वाला था, वो एक ज़िद्दी लड़का था। उसने कोशिश जारी रखी। इत्तफाक से इन्हीं दिनों इसके घर का कोई शीशा टूटा जिससे उसकी कलाई ज़ख्मी हो गई। उसने फ़ौरन अपने खून से सखी को ख़त तहरीर किया कि अगर तुमने मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की तो मैं जान दे दूँगा। मैंने ख़त अपनी कलाई काट कर तहरीर किया है। उसने ख़त मौका देखकर एक बच्चे के साथ भेज दिया जो उसे हिफाजत से मिल गया। उसने ख़त खोल कर पढ़ा तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि ख़त खून से लिखा हुआ था और ज़मान का नाम भी दर्ज था। तहरीर था, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शाहरग काट लूँगा। उसकी धमकी से वो बेचारी डर गई। इत्तफाक के वो हमारे घर आई तो हुस्न बानो भी अपनी वालदा के हमरा आई हुई थी, क्योंकि उसकी माँ से मेरी माँ की अच्छी सलाम दुआ थी। सखी ने हुस्न बानो की खैरियत पूछी। वो बोली खैर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई की कलाई बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी और अब वो अस्पताल में दाखिल है। ये सुनकर सखी परेशान हो गई। तभी हुस्न बानो से कहा, तुम जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो एक बार मेरे भाई को अस्पताल देख कर आओ ताकि वो जल्द सेहतियाब हो जाए। वो सादा दिल लड़की ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी ना चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए। उसने कहा कि तुम अपने भाई को समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके साथ राब्ता नहीं रख सकती, क्योंकि अपने वालिद से वादा किया है कि उनकी इज्जत की लाज रखूंगी। वो बोली, मैं कब कहती हूँ कि तुम उसके साथ मोहब्बत करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार मिलकर उसे समझा दो ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे तुम लोगों या हमारी इज्जत में फ़र्क आए। यूँ कह सुनकर हुस्न बानो ने उसे राज़ी किया और हमारे घर से उसे हस्पताल ले गई। सखी ने कहा, अगर मेरी माँ पूछेगी कि कहाँ गई है तो कोई बहाना कर देना। मैं सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुकूंगी और ज़मान को खुदा का वास्ता देकर समझाऊंगी कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अल्लाह की मर्ज़ी उसकी माँ ने तो ना पूछा, वो समझी कि हमारे घर में बैठी है, लेकिन उसके वालिद ने सखी को हस्पताल में ज़मान से बात करते देख लिया। वो अपने एक बीमार दोस्त की अयादत को हस्पताल गए थे। घर आकर बेटी की खूब खबर ली, साथ ही बीवी को भी मारा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि हस्पताल इस लड़के की अयादत को चली गई, उसके साथ उसका क्या वास्ता है। अब्बा जी ने यहीं पर बात ख़त्म नहीं की, बल्कि बीवी से कहा कि अब मैं सखी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन मार दूंगा। बीवी डर गई, क्योंकि यहाँ ऐसी बातों पर लड़कियों के कत्ल होते रहते थे। ताई को भी यकीन हो गया कि सखी के बाप ने महज धमकाने के लिए ऐसा नहीं कहा, वो बेटी की जान भी ले सकता है। ताई ने ताया के आगे हाथ जोड़े कि बेटी को मत मारना, तुमने उसे पढ़ाया लिखाया है तो उस पर यकीन रखो कि उसने कोई गलत हरकत नहीं की होगी। और गलत हरकत क्या हो सकती है, मैंने खुद अपनी आंखों से मर्दों के वार्ड में इस लड़के से बातें करते देखा है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सखी को जिंदा रखकर उससे ज़्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब करूं और उस लड़के के साथ उसके ख़ानदान को भी ख़त्म कर दूं? ताई बहुत डरी हुई थी। उन्होंने शौहर के कदमों को छू कर कहा, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं? हो सकता है अगर लड़के का बाप हमें 100 भेड़ें देकर हमारी लड़की का रिश्ता मांग ले, क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहाँ बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम नकद या माल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है
और ये रकम बेटी की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस तरह लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया जी चूंकि नगरी नगरी घूमते थे, लिहाजा वो बेटी को सजा नहीं देना चाहते थे। जो यहाँ का रिवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राब्ता रखे तो उसे या दोनों को ही जान से मार दिया जाए। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर हुस्न बानो की वालदा से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेगी और शौहर को राजी कर लेगी। यूं वो जमान के घर मेरी अम्मी के साथ गई। मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की कि अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राजी करो। वो इज्जत से रिश्ता मांग कर मेरी लड़की को बहू बना ले, वरना मेरा शौहर सखी को मारने की कसम खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल ताई के आंसू देखकर पिसीज गया। हुस्न बानो ने भी अपनी माँ से कहा कि जमान कब से सखी से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो उसको मौका ना देती थी। तो मैं ही सखी को हस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गरूर का मारा हुआ था। उसने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की औरत हमारे घर ना आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा ही मसला पैदा कर रहा है, किसी दिन वो भी सखी के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। जमान के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं जमान से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कर देगा तो हम रिश्ता ले लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत की बात है कि उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि सखी को मैं इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए, आप उसकी माँ को इनकार कर दें। माँ मजबूर हो गई क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने सखी का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। आया ने बीवी से कहा, वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राजी हैं। जवाब मिला कि नहीं, इन्हें दौलत का घुमंड है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? क्या सखी को वाकई मार दोगे? मैं ये नहीं कर सकता, मगर भाभी को हमरा लेकर जमान के वालदैन के पास गई। ये तुमने गलती की, अब बात खुल जाएगी, वो अपने मैके में ज़रूर ये बात बतलाएगी, इसलिए मुझे सखी को अपने घर से रवाना करना होगा। यूं ताया ने बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे दूर दराज के गांव में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जिस शख्स ने इसे खरीदा उसने अपने बेटे का घर बसाना था। वो एक बुजुर्ग आदमी था। सखी का निकाह बेटे से किया और उसे बहू बनाकर अपने घर रख लिया। अमूमन ऐसी खरीदी गई लड़की की ससुराल में इज्जत होती है और ना शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करता है। लेकिन अल्लाह ने सखी की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और उसे शहबाज की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने उसके साथ हुस्न सलूक से ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कज़न की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकली और एक फरिश्ता सिफ्त इंसान की शरीक ज़िंदगी बन गई, जिसने न सिर्फ इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। ये अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर हो जाए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना भी एक मौजज़ा है। जिस पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम हो, वो अगर मौत से हमकनार ना की जाए तो फरोख्त होती है, तब भी उसकी ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। ससुराल वाले बदचलन समझते हैं और उसके किरदार पर तानाजनी करते हैं, मगर सखी के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। अल्लाह ने उसे बेहतरीन सोच रखने वाला शौहर और खुशियों भरी ज़िंदगी अता कर दी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।